سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیسز عمر ایوب شبلی فراز سمیت دیگر رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اور کمل شوذب، زرتاج گل، محمد احمد چٹھا، سردار عظیم اللہ خان کو بھی سزا سنائی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا، تہمینہ ریاض، رانا ناصر علی کو سزا سنائی گئی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 108 ملزمان کو سزا سنا دی ہے۔ جنید افضل ساہی، شیخ راشد شفیق، اشرف سونا، رائے حسن نواز کو سزا سنائی گئی۔ علی افضل ساہی کو تھانہ سول لائنز کے مقدمے میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے تھانہ سول لائنز میں درج 77 ملزمان کو، جو اس میں درج مقدمہ تھا، 77 ملزمان کو اس میں بری کیا۔ 3 مقدمات میں فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو کو بری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے پولیس میں نظر آتش کرنے کا کیس کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ 32 میں سے 28 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کو اس مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کمل شوذب، شہزاد فاروق، شکیل خان، شیخ راشد شفیق بھی سزا پانے والوں میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے 9 مئی مقدمات میں سزاؤں کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز سیاسی ہیں، ہم سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے۔ انصاف انتہا پسندی پہ بلیو نہیں کرتی، سیاست میں انتشار اور تشدد پہ بلیو نہیں کرتی۔ یہ لوگ جن کو آپ نے سزائیں دی، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں تشدد پہ یقین نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لاہ عمل بہت جلد اناؤنس کرے گی۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ مفاہمت کی بڑی خان صاحب نے کوشش، یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اس سے ملک اور قوم کا سخت ترین نقصان ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں 50 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری آج جاری ہوئے، 9 کے پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ عارف الوی، عبدالقیوم نیازی، شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکرم راجہ ان میں شامل ہیں۔ رؤف حسن، مراد سعید، علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، حماد اظہر، عاطف خان کے بھی وارنٹ جاری ہوئے۔ اعظم سباتی، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ علیمہ خان، شیخ وقاص اکرم، کمل شوذب، شیر افضل مروت کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے۔ وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا عدالتی حکم پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ اور اس حوالے سے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے آج کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ملک کے لیے منفی سوچ رکھنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ فیصلے کے بعد ایسی حرکت کرنے والے کئی بار سوچیں گے۔ لوگوں کو زبردستی اداروں کے خلاف اکسا کر حملے کرنا ناقابل برداشت ہے۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کے نام پر ایسی دہشت گردی کو بند ہونا چاہیے۔ فیصلے کے بعد اب سوسائٹی میں بحث ہونی چاہیے کہ یہ 9 مئی آخری حربہ تھا۔ تشدد کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کو شکست ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹرل الیکشن ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر مشال یوسفزئی سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ مشال یوسفزئی نے 86 ووٹ حاصل کیے، مہتاب ظفر نے 53 اور سائمہ خالد نے 1 ووٹ حاصل کیا، جبکہ 2 ووٹ مسترد بھی ہوئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے فارم 58 جاری کر دیا۔ مشال یوسفزئی نے کہا، یہ میری نہیں، نظریہ بانی کی جیت ہے۔ آج خیبر پختونخوا نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت سب میرے ساتھ کھڑے تھے، ہمارا کوئی بھی ووٹ اپوزیشن کو نہیں ملا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات تاریخی، سیاسی، معاشی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفاعی شراکت داری، مشترکہ تربیت، انٹیلیجنس کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شاہ سلمان اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی سرزمین ہر مسلمان کے دل میں خاص روحانی اور قلبی مقام رکھتی ہے۔ شاہ سلمان کی قیادت مسلم دنیا کے لیے امید، وقار اور ترقی کی علامت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دیرینہ اخوت پر مبنی ہے۔ سعودی عرب سے تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی ستون ہے۔ سعودی قیادت کا خطے میں امن کے لیے کردار قابل ستائش ہے۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے باوجود بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کے خواہاں ہیں۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ عدالتی فیصلے کے حوالے سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز کو جو ہے وہ زخمی کیا، توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھراؤ کیا، اور دیکھیے بہت اس میں ہمارے جو سمبلز آف نیشنل یونٹی ہیں ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کے لیے جو ٹرائل چلا ہے بہت فیئر ٹرائل چلا،
एक लंबा अरसा ये ट्रायल चला और इस पे जिरा भी हुई, इस पे गवाह भी पेश हुए, एविडेंस भी प्रेजेंट किया गया, तो हम ये समझते हैं कि ये एक फेयर ट्रायल था और एक लंबे अरसे पे मुहित ट्रायल था कि जिस दौरान तमाम तर शवाहिद जो हैं वो पेश भी किए गए अदालत के सामने। तो 9 मई इस मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन था कि जिस दिन इन हमला आवरों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जला दिया, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दिया और केपी के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को जो है वो जलाओ घिराव किया। इसी तरह फैसलाबाद का आज फैसला आया है, तो फैसलाबाद में इन्होंने दिफाई जो हमारे इदारे हैं उनके दफातर का रुख किया, वहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए और इन सज़ाओं से आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे, क्योंकि जिन दिफाई तनसीबात को इन्होंने निशाना बनाया, ये हमला आवर हुए, इन्होंने लूट मार की, जलाओ घिराव किया और जो ज़बान इस्तेमाल की वो तमाम तर कैमरे की आंख ने महफूज की। CCTV फुटेज के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। उन लोगों की पहचान बिल्कुल क्लियर है कि वो कौन लोग थे जो दिफाई तनसीबात की तरफ गए। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही इनका घिनौना जुर्म था और ये उसकी तौजीहात भी पेश करते रहे, मगर ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि इसका मास्टरमाइंड जो इनकी पार्टी का बानी है जो जेल में है, ये उसने बाकायदा जूम मीटिंग की और उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए, मगर ये बलवाई, ये हमला आवर, ये जिस तरीके से इन्होंने दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, शोहदात तक की तकरीम ना की कि जिन्होंने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, उनकी यादगारों को मस्मार किया और पूरे मुल्क के अंदर एक साजिश के तहत बाकायदा तौर पर निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो ये जो सज़ाएँ हुई हैं कानून के मुताबिक हुई हैं, एक फेयर ट्रायल के ज़रिए हुई हैं और इसका नतीजा यही निकलना था जो कि निकला है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी मज़मूम साजिश थी जिसके तहत मुख्तलिफ शहरों में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इन्होंने ये काम किया, ये तो दुश्मन ने भी कभी नहीं किया और दुश्मन ने ये ख्वाब ज़रूर देखा, मगर आपने देखा कि दुश्मन को जिस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया और मार्का हक जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह नसीब की। तो दुश्मन ने जब भी ख्वाब देखा हमलावर होने का, तो हमने तो हमेशा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको मुंह की खानी पड़ी। ये कैसे लोग हैं जो वो काम करने पे तुले हुए थे कि जो दुश्मन भी नहीं कर सका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक जो सज़ाएँ इनको हुई हैं इनका खैर मकदम करते हैं। इससे आइंदा रास्ता बंद होगा कि कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो किसी भी हसास इंस्टॉलेशन के पास, दिफाई तनसीबात के पास, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए, जलाओ घिराव के लिए, लूट मार के लिए। आप देखें कि जो जिना हाउस था लाहौर का, उसके अंदर बाकायदा लूट मार की गई जिस तरह प्रोफेशनल डाकू करते हैं। अच्छा प्रेसिडेंट इस मुल्क के अंदर सेट हो गया है कि आइंदा कोई भी 9 मई जैसी घिनौनी साजिश और ऐसी मजमूम जो एक हरकत है वो करने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुल्क ने इंशाल्लाह तरक्की करनी है, मुत्तहिद रहना है, जिस तरीके से नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में और जिस तरह अस्करी बर्तरी हमने हासिल की और दुश्मन को एक शिकस्त फाश दी कि दुश्मन आज भी आपने देखा कि जिस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में मोदी के साथ हुआ, ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक इज़्ज़त है, पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस जंग में अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी। और ये लोग तुले हुए थे कि ये दुश्मन का बयानिया लेके चलते हैं और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर वो चाहते हैं कि तशद्दुद हो, जलाओ घिराव हो। तो ये इनके तमाम मकासद जो मज़मूम थे वो नाकाम हुए और आज के दिन जो इनको सज़ाएँ हुई हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन है। और 9 मई को जो इन्होंने साजिश की थी वो उसका सबके सामने जो है वो खुल के मंसूबा आ गया है और इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा कोई ज़रूरत नहीं करेगा कि ऐसी कोई हरकत करे। बिस्मिल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हुकूमती नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे जो फैसले हैं 9 मई के केसेस से मुतालिक, उस पर उनका ये कहना था कि इन सज़ाओं से आइंदा किसी को भी जुर्रत नहीं होगी कि वो इस किस्म की मज़मूम हरकतें कर सके। और 9 मई मुल्क की तारीख का सयाह तरीन दिन था। 9 मई हमलों के नाकाबिल तरदीद सबूत जो है वो मौजूद हैं और हम इन फैसलों का खैर मकदम करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जो अदालती फैसले हैं 9 मई के केसेस से मुतालिक, उससे मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया है।
बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। Union Town, the heart of urban Lahore. Just 5 minutes drive from UCP and Shaukat Khanam Hospital. Positioned between Abdul Sattar Eidi Road and Pine Avenue. The future is already under construction. तो आए हिस्सा बने यूनियन फैमिली का। यूनियन टाउन में 3, 5, 10 और 20 मरला के रहायशी और कमर्शियल वैलिड शुदा ऑन ग्राउंड प्लॉट्स 2.5 साल की आसान इक़्तिसाद पर बुकिंग के लिए दस्तयाब हैं। यूनियन टाउन 08009। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। दोनों मुल्क मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। पाकिस्तान ने मुआहदे का खैर मकदम किया है। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मुआहदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद ही मुआहदे का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने लिखा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। इनका कहना था हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा तय पा गया है। वज़ारत ख़ज़ाना के जारी करदा एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद 2 तरफ़ा तजारत का फ़रोग और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग देना है। ये पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तजारती नुमाइंदों से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। खास तौर पर अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका दे दिया। ईरान से तेल की खुफिया तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिकी महकमा खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान से तेल हासिल करने वाली दुनिया भर की 20 कंपनीज पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 20 कंपनीज में से 7 कंपनीज भारत की हैं। ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की नकलो हमल में मुलव्वस 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना है कि सदर ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा हो चुकी है। दुनिया जानती है कि मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी। मोदी ने अपने दोस्त अडानी को नवाजा, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया क्योंकि नौकरियां ही नहीं हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना के अलावा ये सब जानते हैं कि भारतीय मईशत मुर्दा है। अमरीकी सदर ने एक हकीकत बयान की है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग के मौके पर खिताब किया। उनका कहना था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग मुल्की खलाई तारीख का अहम संग मील है। चीन के ताउन से तैयार सेटेलाइट दोनों ममालिक की गैर मुतज़लज़ल दोस्ती और एतमाद का मज़हर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ 4th अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट स्पार्को की तरफ से चीन में लॉन्च किया गया। वो कामयाबी से अपने ऑर्बिट में पहुंच गया है और ये लॉन्च कामयाब हुई है। ये पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में एक और संग मील है और हमारे ये विज़न है कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा स्पेस टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल में लाएंगे। आइंदा साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट चाइना की मदद के साथ खला में और खलाई स्टेशन में जाएगा और ख़ास तौर पे अपने चीन के आयरन ब्रदर दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हर कदम हर शोबे में पाकिस्तान के साथ उसके तरक्की के सफ़र में शरीक हैं।